بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اے ویری اسپیشل ایپیسوڈ آف کرکٹ محفل. ہمارے ساتھ آج ہیں دانیال رسول جو کہ کرک انفو کے رائٹر ہیں. ان کی رائٹنگ ہم سارے بہت شوق سے پڑھتے ہیں. میں اسپیشلی ایم اے ویری بگ فین. دانیال, تھینک یو فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ ٹو جوائن اس ٹوڈے. السلام علیکم. یو ویری ویلکم. میں آئی ایم ایکسائٹڈ ٹو بی ہیئر. تھینک یو. اب دانیال, پی ایس ایل کا یہ ڈرافٹ جو ہے تھوڑا انٹرسٹنگ تھا. ہم نے کچھ لیفٹ فیلڈ ڈیسیجنز دیکھے, ہم نے کچھ سرپرائزنگ ڈیسیجنز دیکھے, کچھ بالکل ناٹ سرپرائزنگ دیکھے. تو اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پینڈیمک کی وجہ سے, کووڈ-19 کی سچویشن کی وجہ سے پی ایس ایل ڈرافٹ کو افیکٹ ہوا ہے؟ کچھ ٹیمیں ہمیں ایکچولی پہلے سے زیادہ اسٹرانگ لگ رہی ہیں. کراچی کنگز بہت اسٹرانگ لگ رہے ہیں, لاہور قلندرز کا اسکواڈ کافی سیٹل لگ رہا ہے, کچھ ٹیموں میں تھوڑے سے چینجز آئے ہیں. تو آپ کو اوور آل کیسے لگا کہ ڈرافٹ کیسا گیا تمام ٹیموں کے لیے؟ میرے خیال میں گیون جن سرکمسٹانسز میں ہم ہیں, آپ کو اگر پچھلے 4 یا 5 ڈرافٹ دیے جائیں اور بتائیں پک کریں کون سا ڈرافٹ ہے جو ایک پینڈیمک کے ٹائمز میں لیا گیا تھا, تو آئی ڈونٹ تھنک یو پک آؤٹ پی ایس ایل 2021 اسینشلی, کیونکہ اس کے اندر اس طرح سے آپ کو وہی اسٹار نام بار بار نظر آتے ہیں جو کہ یو وڈ ایکسپیکٹ ایٹ اینی پی ایس ایل ڈرافٹ. بلکہ دا ریٹرن آف پیپل لائک کرس گیل ایون اور the fact کہ so many teams have managed to retain a lot of their players, مجھے اس سے یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک ویکنڈ پی ایس ایل ہے in any way. So I think اس لحاظ سے کوئی پیسمزم جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ٹیمز نے مے بی اب دیکھیں we're going into PSL 6, ٹیمز نے اب سیکھنا شروع کر لیا. ان کی مینجمنٹ کو, ان کے کوچز کو ٹائم ہو گیا, ان کو عادت سی ہوگی, ان کو پتہ لگ گیا کیا ان کی ویکنیسز تھیں. پچھلے پی ایس ایل میں ہم نے دیکھا بیکاز پینڈیمک شروع ہوئی اسی ٹائم پہ ہوا, پی ایس ایل کو روکنا پڑا, پھر اس کو جس طرح سے ختم کیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کراچی نہ اسپیشلی اگر ہم کراچی سے شروع کریں بیکاز وہ ڈیفینڈنگ چیمپئنز ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کراچی لاسٹ ٹائم انہوں نے اور لاہور نے بالکل فارم تھوڑی لیٹ ہٹ کی؟ اگر میرے لیے بڑا مشکل ہے ایز اے ملتان سلطانز فین, بٹ آئی تھنک ملتان سلطانز کا تھوڑا سا انگلینڈ 92 ورلڈ کپ والا سین تھا کہ سٹارٹ بہت اچھی ہوئی اور بالکل اینڈ میں آ کے جیسے ہی لاسٹ کپل آف گیمز میں they weren't able to continue a very strong start. So آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی are coming into this very strong now? کراچی کا بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ over the years they've been a bit unlucky. They've not actually been as bad as say Lahore had been bad before this last PSL. So do you think کراچی پہ اب زیادہ پریشر ہے, اور do you think کراچی will actually use that win, ان کی جو جیت ہے PSL میں, اب چیمپئنز ہیں, اس کو وہ یوز کریں گے جس طرح کی ان کی ٹیم ہے, ہم تھوڑی سی دیر میں اسپورٹ کی طرف آتے ہیں, اس کو وہ یوز کریں گے اپنے ایڈوانٹیج پہ؟ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ کیونکہ میں لاہور سے ہوں تو میں ذرا تھوڑی سی کنٹینشس بات کروں. مجھے اسینشلی آئی ڈونٹ اگری کہ کراچی اتنے ان لکی رہے ہیں. پی ایس ایل کا جو پہلے 2 سال اسپیشلی فارمیٹ تھا وہ ایسا تھا کہ 5 میں سے 4 ٹیمز کوالیفائی کرتی تھی, اینڈ آن بوتھ اوکیزنس کراچی 4th رہ کے وہ دے مینیج ٹو کوالیفائی اینڈ دے گاٹ اے رن پلے آفس میں. وہ ہر سال ٹو دے کریڈٹ ویسے وہ کوالیفائی کیے فار دا پلے آفس, لیکن ایک 2 سال وہ 4th 3rd بالکل ان فرنجز پہ رہ کے وہ کوالیفائی کیے. اینڈ اس لحاظ سے آئی تھنک کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کراچی کے ساتھ اس طرح سے بیڈ لک ان کو اسٹرائک کیے, بٹ آہستہ آہستہ انہوں نے, کیونکہ ہر سال ان کا ایکسپیرینس ہے کہ وہ پلے آفس تک جاتے ہیں, دے گو ڈیپ, تو ایوری ایئر دے پک اپ سم تھنگ نیو. اس ٹائم یہ ہوا کہ بیکاز ان کا اتنا ہی ایکسپیرینس ہے, آئی تھنک دے اینڈ پشاور آئی بلیو یہ اکیلی 2 سائڈز ہیں جو ہر سال کوالیفائی کیے فار دا پلے آفس, تو دے لرن سم تھنگ نیو. اور اس دفعہ انہوں نے کرنچ ٹائمز پہ اسپیشلی اگینسٹ ملتان, وہ میچ جو کہ سپر اوور میں گیا جو کہ ملتان کو ریڈی بہت پہلے ریپ اپ کر لینا چاہیے تھا, لیکن کراچی ان کرنچ مومنٹس میں از اے لٹل مور ایکسپیرینسڈ. اور جب فائنل آیا تو دے ور پلینگ اگینسٹ لاہور, وہ لاہور بھی ذرا obviously اس اسٹیج پہ ان کو تو ورٹیگو ہو گیا ہوگا اتنا جتنا ڈیپ گئے, لیکن اس لحاظ سے تو کراچی نے اپنا اپرچونٹی دیکھی اینڈ دے کیپیٹلائز. تو اس لحاظ سے کریڈٹ ٹو دیم اینڈ a lot of their players جو کہ ان کے ساتھ کافی دیر سے ہیں, وہ they have become a lot stronger now. تو کراچی in my opinion is a side جو کہ بالکل اپنی ٹائٹل ڈیفینڈ کر سکتی ہے. اب اگر ہم کراچی کے اسکواڈ کی طرف آتے ہیں دانیال جی, تو ہم دیکھتے ہیں اوبیسلی آپ کے اسٹار نیمز ہیں, بابر اعظم ہیں, محمد عامر کے بارے میں آج کل آف کورس بہت باتیں ہو رہی ہیں ود ایوری تھنگ دیٹس گون آن, بٹ انہوں نے کچھ بڑے ایکسپیرینس کیمپینرز پہ کیے ہیں. ڈین کرسچن پہ میں آنا چاہوں گا بیکاز ڈین جو ہے ملتان سلطانز کے لیے بھی کھیلیں دا پاس, ان کا بگ پیش ریکارڈ اور ان کا T20 بلاسٹ ریکارڈ کافی اسپیکٹیکولر ہے. کنٹینیوسلی وہ پرفارم کرتے ہیں T20 کرکٹ میں, اور وہ ان ٹیموں کے حصہ ہوتے ہیں جو کنٹینیوسلی سکسیسفل ہوتی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے ان کی مینٹالٹی سے, ناٹ جسٹ ان کے پاس ابیلٹی تو ہے, رنز بھی بنا سکتے ہیں, بولنگ بھی کر لیتے ہیں, آسٹریلین ہے تو فیلڈنگ بھی موسٹ پاکستانی سے تو بہتر ہی ہے ان کی, بٹ کیا آپ کو لگتا ہے ان کی جو مینٹالٹی ہے ایک ایکسپیرینس کھلاڑی کی مینٹالٹی, اس سے کراچی کو فائدہ ہوگا؟
कुछ प्लेयर्स होते हैं T20 सर्किट पे जो कि जब कोई साइड उन्हें पिक करती है तो आपको अंदाजा होता है कि दिस साइड नोज व्हाट इट्स डूइंग समहाउ डैन क्रिश्चियन इज वन ऑफ दोस बेन कटिंग एक और है मुझे लगता है टाइम्स इवन मोहम्मद हफीज एक हैं कि उनकी एसेंशियली इमीडिएटली आपको स्टार वैल्यू नहीं नजर आती कि एक एस्पेक्ट है जिसमें वो सुपरस्टार है बट उनका एक्सपीरियंस और उनका द फैक्ट कि वो हर लीग में जाके उन्होंने अपनी वैल्यू शो की होती है बिकॉज ये वर्सेटाइल क्रिकेटर्स हैं डैन क्रिश्चियन स्पेशली मे बी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एग्जांपल है ऑफ दिस T20 ब्लास्ट और बिग बैश में तो ही ऑलवेज परफॉर्म्ड मुल्तान सुल्तान्स के साथ आई डोंट थिंक ही हैड द चांस टू प्रोड्यूस हिज बेस्ट रियली लेकिन कराची में ही हैज द चांस क्योंकि इनके इर्द गिर्द जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे हैं कि इनकी स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो जो इनका ऑलराउंडर पोजीशन है जो वो बैलेंस लाता है अलॉन्ग साइड क्योंकि कराची के स्पेशलिस्ट बॉलर्स और बैट्समैन दोनों हैं और they have always been on the lookout for someone like this वरना मुझे हमेशा इंप्रेशन आता था कि कराची या एक बैट्समैन लाइट एक बॉलर लाइट खेल रही है तो ड्राफ्ट में they made some very interesting picks मुझे उनकी एडिशन मुझे मोहम्मद इलियास की एडिशन the fact कि उन्होंने वो मुल्तान सुल्तान से another player लिया which will be a bit of a loss for Multan in my opinion तो मोहम्मद नबी as a spin option तो in my opinion Karachi has done some good business and वो we could see it pay off Especially, of course, Ilyas, I've worked closely with Ilyas also. He's been performing. वो बड़ा अच्छा continuously कर रहे हैं. Danish Aziz is another जिनकी काफी अच्छी performance रही है. तो as a local boy, you know, as a boy from Sindh, उनके लिए कराची के लिए खेलना. So, like you said, उनके पास अब options काफी अच्छी लग रही हैं कराची के पास. And do you think बाबर की form जो है कुछ पिछले injury से वापस आने के बाद is a concern या PSL बिल्कुल ही different game होगी from what he's been going through? दानिश पहले तो आपने दानिश अजीज की बात की दानिश अजीज कराची शायद थोड़े से डिसअपॉइंट हो कि उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ चांस नहीं मिला मे बी वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता वो ही टू गेट अ कपल ऑफ इंटरनेशनल गेम्स लेकिन उसके अलावा दानिश अजीज 2 साल पहले भी उनको कोई इतना फैनफेयर नहीं मिला वो वनडे कप फाइनल में एक बड़ी पार्टनरशिप उनकी थी ही स्कोर्ड 140 आई थिंक फाइनल में बहुत बड़ी चेज में वो नहीं हुई सक्सेसफुल बट ही प्लेड हिज पार्ट नेशनल T20 कप में उनको वो प्रोमिनेंस जो डिजर्व करते हैं वो मिली पर्टिकुलरली एक मैच जो उन्होंने फिनिश किया लेकिन तो इसलिए इन माय ओपिनियन वो एक यंग प्लेयर है जो कि ही इज नॉट दैट यंग 24 लेकिन ही समवन जो कि इज समवन वर्थ वाचिंग आउट फॉर जो बाबर आजम है आप 2-3 मैच बाबर का स्टैंडर्ड इतना हाई है कि 2-3 मैचेस वो ना परफॉर्म करें तो जरा अलार्म बेल्स रिंग करना शुरू हो जाती है बट कराची के लिए ही हैज ऑलवेज played a particular role at the top जो कि उन्होंने every year almost to year on year to perfection उन्होंने execute किया है He's the highest run scorer in the PSL क्योंकि वो 4 साल जिस तरह उनका स्टेलर रिकॉर्ड है और जितना वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं आई डोंट थिंक कि ये एक PSL एक क्लिप है जो कि PSL लेवल पे उस तरह एक्सटेंड करेगा कि कराची नीड टू बी वरीड तो मेरे ओपिनियन में वो दैट्स नॉट समथिंग जो कि एक इतनी बड़ी कंसर्न है अभी अब दानियल आते हैं जी लाहौर कलंदर्स की तरफ जिस तरह हमने कहा लास्ट ईयर उनके लिए फाइनल बिल्कुल एक बड़ी डिफरेंट अचीवमेंट थी गोइंग विद व्हाट हैड गॉन ऑन उससे पहले 4 वाले PSLs में और ऑफ कोर्स जो लोग मीम्स बनाते हैं शेयर करते हैं उनके लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी क्योंकि लाहौर कलंदर्स यू नो राणा साहब के साथ किसी को भी अटैच करके वो करना तो बट लाहौर प्लेड वेरी गुड क्रिकेट लास्ट ईयर स्पेशली हमने देखा उन्होंने टफ सिचुएशन में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली डेविड वीसे की मुझे तो लगता है कि उनकी किसी मुल्तानी से लड़ाई है या उनको किसी से गुस्सा चढ़ा हुआ है तो हर दफा मुल्तान को आके जितना वो मारते हैं आई थिंक उनका स्टैच्यू बना देना चाहिए आउटसाइड गद्दाफी स्टेडियम तो ही इज बैक इन द स्क्वाड ऑल्सो हम अगर देखें तो कुछ इंटरेस्टिंग पिक्स आपको क्या लाहौर की स्क्वाड में हु स्टैंड्स आउट राशिद खान ऑब्वियसली बट क्या वो पूरी PSL के लिए अवेलेबल होंगे बिकॉज अफगानिस्तान की आई बिलीव एक सीरीज भी आ रही है जो साइमल्टेनियसली रन करेगी लाहौर का ये है पार्शली एक तो कि उनके साथ उनका कोई एनालिसिस करना आप अपनी रेपुटेशन पे कुल्हाड़ी ले लेने वाली बात है मतलब कि आप कुछ भी कहोगे वो आगे कंप्लीटली उसको आइदर वे या फॉर गुड या फॉर बैड डिस्प्रूव कर देंगे बट लाहौर की इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है कि समहाउ जो उनके पास सुपरस्टार्स आते हैं हमें पता है कि ब्रेंडन मैकलम आए क्रिस गेल आए जेसन रॉय आए वो उस तरह वहां परफॉर्म नहीं करते लेकिन जो जिनको आप मिडिल ऑफ द रोड क्रिकेटर समझते हैं जरा थोड़े से मे बी स्लाइटली अबव एवरेज वो दे रियली कम टू द पार्टी लाहौर के लिए डेविड वीसा इज एन एग्जांपल जो आपने दिया उसके अलावा बेन डक भी पिछले साल उनका कोई इतना सक्सेसफुल रिसेंट करियर नहीं था जिससे उनके वो हीरोइक्स एक्सपेक्ट किए जा सकते थे सो ये लगता भी इन अ वे क्योंकि वो मिड 30s में थे उनका करियर उस तरह से कहीं नहीं जा रहा था नाउ ही इज कैप्टन ऑफ द साइड जो कि शायद सबसे पॉपुलर है PSL में सो उस तरह से इट्स हार्ड टू से कि हम लाहौर के बारे में आप कोई एनालिसिस कर सके लेकिन उन्होंने जो बिजनेस की है मुझे वो सबसे उसमें इंटरेस्टिंग अगेन लगती है आपने रीसे की मुल्तान
के साथ दुश्मनी की बात की, लेकिन जो उन्होंने ज़ीशान अशरफ को पिक किया है वो मे बी मुल्तान सुल्तान्स को लेटर इस चीज वो हर्ट करे, बिकॉज इज अ वेरी वैल्यूएबल एसेट टू हैव। उनके पास भी अपने होंगे, लेकिन इन्होंने लाहौर पहली दफा आर लुकिंग लाइक अ टीम जो कि सिर्फ बिग नेम से अट्रैक्ट नहीं हो रहे, वो देख रहे हैं कि हमारे स्क्वाड के अंदर क्या कमी है और हमने उनको कैसे पूरा करना है। लेकिन साथ उन्होंने अपने कोर ऑफ द टीम को रिटेन किया, लॉट्स ऑफ दो सेम प्लेयर्स। राशिद खान की आपने बात की, 2 टेस्ट मैच सीरीज है मार्च के शुरू में जिम्बाब्वे के खिलाफ आई थिंक, तो वो उनका इशू होगा। लेकिन अदर देन दैट एक इनके ऐसा स्क्वाड है जो कि अगर एज अ स्क्वाड ये खेले तो दे कैन प्रोड्यूस बेटर देन अगर आप वो इंडिविजुअल नाम देखें तो वो शायद प्रोड्यूस कर सके। ज़ीशान की आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, बिकॉज मुल्तान के बारे में विल कम टू मुल्तान लिटिल लेटर ऑन, बट मुल्तान के पास स्पेशलिस्ट विकेट कीपर फिर रिजवान ही है। एंड आई नो बात की गई है कि खुशदिल भी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट द सेम। ज़ीशान एज एन ओपनर उन्होंने हमें लास्ट टाइम भी देखा, उन्होंने मुल्तान में जब स्टार्ट्स भी दी, ऑब्वियसली एज अ विकेट कीपर आल्सो। सो ये बिल्कुल सही है कि ही कैन बी अ वेरी गुड पिक फॉर लाहौर। इट शोज कि उन्होंने अपने सारे बेसिस कवर किए हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स डिफेंडिंग चैंपियंस थे दानियाल लास्ट वाले एडिशन में। दे फेल्ट कि उनके साथ थोड़ी सी लास्ट टाइम ज्यादती हुई थी। आई नो कि उनको थोड़ा सा फील हुआ था कि जो स्केड्यूलिंग थी थोड़ी सी उनके खिलाफ अनफेयर थी, बट इस दफा अगर देखा जाए तो दे ऑल्सो लुक लाइक हैविंग अ वेरी सेटल्ड वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड, पर्टिकुलरली अगर टॉम बैंटन पूरे पीएसएल के लिए अवेलेबल हैं एंड ही हिट्स फॉर्म, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। टी20 फ्रेंचाइज लीग में ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइज्ड एसेट्स जिनके पीछे जिनको लोग चेज करते हैं। पिछले साल पेशावर पे वो स्ट्रगल किए थोड़ा कामरान अकमल के साथ, आई गेस एक साथ और साथ रोल प्ले करना उतना इजी नहीं है, लेकिन ही इज अ मोर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर नाउ। ही इज वेल रेस्टेड। उन्होंने बिग बैश लीग नहीं खेली, उनको बायो बबल उन्होंने कहा एग्जॉशन है, वो ब्रेक ले रहे थे, तो उस लिहाज से वो फ्रेश होंगे जो कि उन्हें हेल्प करेगा। बट क्वेटा जनरली मैं जब सारे स्क्वाड्स देखता हूँ तो क्वेटा इज द वन जिसमें अगर आप कहते हैं ना कि एक स्क्वाड में वीकनेस ढूंढो, तो क्वेटा इज द वन जिसमें सबसे मुश्किल है मुझे लगता है वीकनेस ढूंढना। आप शायद ये वीकनेस निकाल सकते हैं कि अदर देन क्रिस गेल उनके बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं, उनके आई थिंक 9 या 10 प्लेयर्स हैं जो 22 या 23 की एज से कम है, तो उन पे प्रेशर है कि वो अपनी मे बी एज और एक्सपीरियंस से बढ़ के परफॉर्म करें। बट इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल क्रिकेटर्स उनके पास जितने पावर हिटर्स हैं, उनके पास क्रिस गेल है, टॉम पैंटन है, इवन कैमरन टेलपोर्ट है जो कि बिग हिटर है, हमने देखा हुआ है। पेन कटिंग काफी बिग हिटिंग कर सकते हैं। आजम खान है। आई थिंक फैफ टू प्लेसी जो है रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के लिए ही इज अ वेरी गुड पिक, क्योंकि अब उन्होंने आज अनाउंस किया कि टेस्ट क्रिकेट भी रिटायर करें, उनका फोकस टी20 क्रिकेट पे है। तो उस लिहाज से आई थिंक कि उनकी बहुत ज्यादा उनकी बैलेंस और उनका सारी जो स्ट्रेंथ्स हैं उन्होंने हर जगह को हर बेस को इफेक्टिवली कवर किया हुआ है। और फैफ ऑफ कोर्स विनिंग मेंटालिटी भी लेके आते हैं, अराउंड द वर्ल्ड he's played in so many important teams। हम यंगस्टर से अगर मूव ऑन करते हैं, मेरी टीम मुल्तान सुल्तान्स की तरफ आते हैं, तो थोड़ी सी इंग्लिश में कहावत होती है डैड्स आर्मी, तो यहाँ पर थोड़े से हमें वो ज्यादा लग रहा है। बिकॉज अगर हम देखें तो आपके पास ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। शाहिद अफरीदी हैं, इमरान ताहिर हैं। आई नो दे बोथ लाइक टू से देयर 40, बट मुझे लग रहा है उसमें थोड़े से आप ऐड कर सकते हैं। बट क्या मुल्तान ने भी कुछ इंटरेस्टिंग पिक्स की हैं? मोहम्मद उमर और शाहनवाज धानी जो हैं, देयर इमर्जिंग प्लेयर्स। जेम्स विंस हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू मुल्तान, बट क्या आपको लगता है उनकी क्रिस लिन जैसे प्लेयर के साथ बन सकती है? बिकॉज क्रिस जब चलते हैं, इंसैनिटी जब लोग कहते हैं, बट विल इट बी दैट इजी? बिकॉज विंस को हमने देखा, उन्होंने बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, अभी बल्कि बिग बैश में भी बड़ी कंसिस्टेंट ब्यूटीफुल इनिंग्स, ही पेसेस इन। Chris is a little bit different. Do you think it's a bit of chalk and cheese उस लिहाज से, या मुल्तान की फायर पावर बहुत ज्यादा टॉप ऑर्डर में लोकेटेड है, लोअर ऑर्डर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, सिवाय खुशदिल के में भी? मुल्तान और पेशावर शायद दोनों की ये एक हो सकती है क्रिटिसिज्म के उनका स्क्वाड इज अ लिटिल, उनकी एवरेज एज जरा हाई है। मुल्तान की आई डोंट थिंक के आप अगर देखें कि किसी भी स्क्वाड के टॉप ऑर्डर में क्रिस लिन और जेम्स विंस हैं, तो वो एक वहां वीकनेस प्रोब करना मेरे ख्याल में एक इज जस्ट निट पिकिंग। वो दोनों दे आर कमिंग ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंपेन्स। क्रिस लिन क्या अब आफ्टर इनिशियली लाहौर के साथ थोड़ा स्ट्रगल करना, एक साल जब वो पुल आउट भी कर गए थे पिछले साल, अब वो ही नोज व्हाट इट्स लाइक टू प्ले इन द पीएसएल और यहाँ उन्होंने डिलीवर किया है। जेम्स विंस इस दफा बिग बैश लीग में he's gone from strength to strength. अब he's a much stronger player than जो पहले थे। उनका मुझे स्ट्रेंथ ये लगती है ज्यादा मुल्तान सुल्तान्स की
کہ ان کے پاس 2-3 ایسے پلیئرز ہیں جو کہ پچھلے سال سے اب تک they are vastly improved cricketers. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نیکسٹ ینگ سٹار کون آ رہا ہے. آج کل مجھے لگتا ہے اتنا فوکس کبھی کبھی یہ مس ہو جاتا ہے اس چیز پہ کہ کون سا پلیئر ہے جو کہ امپروو کافی کیا ہے. تو عثمان قادر از ون آف دوز ایگزامپلز. ہم بات کریں گے کہ شاہد آفریدی اور عمران طاہر تو تھوڑے ان کی ایج زیادہ ہے, لیکن عثمان قادر از اے ویری گڈ لیگ اسپنر جو کہ اگر وہ پچھلے 3-4 مہینے والی فارم کیری کریں اگلے 6 ہفتے تو وہ ملتان کے لیے بہت بڑے ایسٹ ہیں. اور obviously ایکوزیشن آف محمد رضوان اور ساتھ the fact کہ وہ ان کے کیپٹن بھی ہیں. رضوان اس وقت آن فارم شاید دنیا کے بیسٹ وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں ایٹ دس مومنٹ. تو اگر وہ 4 سے 5 ہفتے وہ نکال سکتے ہیں, کیونکہ کافی ڈاؤٹ تھا کہ رضوان اس ٹائپ کے کرکٹر ہیں یا نہیں. ملتان کی کنسرن صرف یہ ہوگی, اگر ہم ملتان پہ ذرا ایک اور لنگر تھوڑا سا کریں, کہ ملتان کے پاس اس طرح سے الیاس کے لاس کے بعد ایک جو گن فاسٹ بولر ہے جو کہ پاکستان کے اندر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہر سائیڈ میں ہوگا, وہ شاید نہیں ہے. ان کے پاس اسٹاک فاسٹ بولرز اچھے ہیں لیکن ان کی بھی ایج زیادہ ہے, سہیل خان, سہیل تنویر, بٹ اس طرح سے وہ مس کر رہے ہیں ایک اس طرح کا فاسٹ بولر جو کہ شاید باقی ہر سائیڈ بوسٹ کرتی ہے. سو دیٹ مائٹ ہانٹ them لیٹر آن, جب ذرا ڈفرینسز بڑے مائنیوٹ ہو جاتے ہیں بٹوین the sides. I believe کہ at least within سندھ کے circles میں belief ہے کہ محمد عمر جو ہے he can be the breakout fast bowler, but pressure بہت ہوگا because ان کی اتنی کوئی domestic performance strong نہیں رہی. ڈومیسٹک پرفارمنس اسٹرانگ نہیں رہی. دوسرا پی ایس ایل کی ناٹ کرٹیسم لیکن ایک چھوٹا سا مجھے وری رہے گی کہ پچھلے 2-3 سال, پہلے سال تھا ایک گولڈن ٹائم تھا جب اسلام آباد یونائٹیڈ سے پرٹیکولرلی بہت سارے ینگ پلیئرز نکلے جو کہ پھر نیشنل سائیڈ میں بھی آئے, لیکن پچھلے 1-2 سال ہم ایٹ ٹائمز ینگ پلیئرز ٹو واچ آؤٹ فار کا نظر رکھتے ہیں اکراس آل ٹیمز, اینڈ دین وہ پھر اس طرح بلاسم نہیں کر پاتے جس طرح انیشلی کچھ پلیئرز کیے تھے. I'd like to see کہ محمد عمر اور شانواز دھانی وہ ایکسیپشن کریں. محمد عمر I haven't seen that much of him, لیکن میں نے بھی آپ کی طرح سندھ سے ان کی باتیں یہ سنی ہے کہ he could be one of those fast bowler جو کہ پرفارم کرے. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمیں ٹیلنٹ ریڈیوس کرنے کی بھی عادت ہے لیکن تھوڑا سا ٹیلنٹ ضائع کرنے کی بھی عادت ہے. ہوپ فلی وہ محمد عمر کے ساتھ نہیں ہوتا اینڈ وہ ان کے پاس اپرچونیٹی ہے کیونکہ یہ ایک گیپ ہے ملتان کی سائڈ میں, اینڈ if he can fill that تو ان کی تو sky is the limit for him. اب آئی تھنک مے بی پشاور زلمی کی طرف آتے ہیں. پشاور میں میرا ننیال ہے, my mom is from پشاور, so انہوں نے بھی وہی ملتان والی انسپریشن لی ہے of keeping the bad army scene. آپ نے بالکل صحیح کہا, ان کی اسکواڈ میں بھی کافی ایکسپیرینس بٹ ایج بھی ہے. وہاب ریاض ہیں, شعیب ملک ہیں, بٹ اگر دانیال جی دیکھا جائے تو ڈیوڈ ملر کے علاوہ do you think any of the overseas players really stands out for you جو اس دفعہ زلمی میں ہیں؟ میں صرف مجھے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ایک پشاور کی بھی کنسرن ہے کہ ان کے پاس کوئی کلاس سپن بولر نہیں ہے. obviously مجیب الرحمان از این ایکسیپشن, تو اس لحاظ سے he stands out کیونکہ وہ ایک رول وہاں پورا کر رہے ہیں جو کہ شاید وہاں اس طرح سے پورا نہیں ہو رہا. ابرار احمد 2-3 سال پہلے ان کو چانس ملا تھا, پچھلے سال وہ ذرا اسٹرگل کیا ہے. ابھی وہ حالانکہ وہ بڑے مسٹری اسپنر ہیں بٹ he hasn't been able to rise to that level. لیکن مجیب الرحمان کی بھی اویلیبلٹی کے ایشوز ہیں جب once the افغانستان زمبابوے سیریز begins. مجھے روی بپارا ہمیشہ اپیل کرتے ہیں. once again یہ ایک ایسے کرکٹر ہیں جو کہ لائک ڈین کرسچن اس طرح سے آپ پہلے سپر اسٹار کے طور پہ نہیں نیم کرو گے, بٹ پی ایس ایل میں جنرلی جہاں بھی جاتے ہیں he does a job for that side. تو وہ مجھے ایشو نہیں ہے. وہاں پہ ایسا زنادوان جو کہ ان کو تنقید بہت ہوتی ہے لیکن when it comes to the PSL تو he always performs. اور پشاور کے اندر I think وہ enjoy کرتے ہیں جو ان کو added responsibility دی گئی ہے, اور اب تو وہ کیپٹن بھی ہیں. کامران اکمل کے ساتھ بھی یہی ہے, although میری یہ کنسرن ہے کہ کامران اکمل کی بھی اب کافی ایج ہے. کامران اکمل شاید PSL کی ہسٹری میں موسٹ کنسسٹنٹلی وہ اگر آپ کہیں کہ بیسٹ بیٹسمین ہے تو وہ رہے ہوئے, لیکن ہر سال ریلائی کرنا ان پہ جس لیول پہ یہ کر رہے ہیں پشاور, اٹ از ٹیمپٹنگ فیٹ کہ ایک سال ہوگا کہ اب you need to move on. اور وہ کامران اکمل maybe I haven't seen that much of him in the last 6 or 7 months to suggest کہ وہ رول لے سکتے ہیں, اور پینٹن کو جانے دینا could be a concern پشاور کے لیے. پہلے جی فائنلی اسلام آباد یونائٹیڈ 2 ٹائم PSL چیمپئنز. آف کورس ان کے پاس ابھی کچھ پاکستانی پلیئرز ہیں جو کہ بہت ان فارم رہے ہیں. اگر ہم حسن علی کی بات کریں, فہیم اشرف کی بات کریں, شاداب has had a bit of an injury break, he will be raring to come back. انٹرسٹنگ کہ ان کو ایلیکس ہیلز ان کے پاس آ گئے بیکاز ہی واز اے ویری امپورٹنٹ پلیئر فار کراچی, اینڈ obviously ان کے پاس آئی تھنک کالن منرو کی اویلیبلٹی ایشوز کے بعد انہوں نے پال اسٹرلنگ کو ڈرافٹ کر لیا, who is also on his day a very good player. تو آپ کو کیا لگتا ہے, اسلام آباد کو ہمیشہ بلیو کیا گیا کہ اٹس اے ویری ویل رن آرگنائزیشن, وہ جس طرح بڑے میٹیکولس ہیں اپنی پکس میں, جس طرح وہ ڈیٹا کو استعمال کرتے ہیں, تو کیا وہی کنٹینیوشن لگ رہی ہے, اور ڈو یو تھنک دس ٹائم they've gone in a slightly different direction? اسلام آباد یونائٹیڈ کی کنٹریبیوشنز ٹو دی پی ایس ایل
काफी वैल्यूबल है बिकॉज इन अ वे वो एक पायनियरिंग फ्रेंचाइज थी. उन्होंने T20 क्रिकेट को के साथ पाकिस्तान के अंदर स्पेशली को साइंस के साथ मिलाया और उसको हार्ड एनालिटिक्स हार्ड डेटा यूज की और इनिशियली तो पहले 2-3 साल उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स मिले. पिछले साल थोड़ा सा ब्लिप था बट उनकी आई थिंक 4 एटलीस्ट गेम्स थी जो कि रेन इफेक्टेड थी, तो मे बी वो थोड़े अनलकी भी थे. उनका इस दफा मुझे सिर्फ मेन कंसर्न ये लगती है कि जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के अंदर ही दे बीन हार्डर हिट देन मे बी एनी अदर साइड. कॉलिन मनरो की एब्सेंस जो है वो तो इसलिए इनको ज्यादा हर्ट करेगी देन मे बी मोस्ट ऑफ द साइड्स, क्योंकि इनकी हमेशा स्ट्रेटजी रही है कि टॉप 4 या फिर 4 ऑफ द टॉप 5 फॉरेन प्लेयर्स हो और बाकी दे हैव द यूथ इन द मिडिल ऑर्डर एंड द लोअर ऑर्डर. तो वो उन्हें तंग करेगी. लेकिन जैसे आपने कहा कि 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पिछले 3-4 महीने से भी सडनली बहुत इंप्रूव लग रहे हैं, हसन अली एंड एलेक्स हेज की तो बिग बैश भी ऐसी थी कि मे बी अगर वो उनकी इंग्लैंड के साथ वो जो पर्सनल इश्यूज पे लड़ाई ना हो तो ही मे कम बैक इनटू देयर साइड एज वेल. इनका भी थोड़ा सा मुझे ये कंसर्न है कि जो इनका मिडिल ऑर्डर है वो पाकिस्तान के T20 का मिडिल ऑर्डर है इस वक्त, और वो पाकिस्तान के लिए दे हैव बीन स्लाइटली आउट ऑफ फॉर्म. हुसैन तलत एंड इफ्तिखार अहमद पर्टिकुलरली, तो आसिफ अली, यस ऑफ कोर्स आसिफ की भी वो 2 साल पहले जो उनकी कंट्रीब्यूशंस थी वो अब सडनली आसिफ जरा वन डायमेंशनल एट टाइम्स लगते हैं. फाइन मशरूफ विद द बैट तो उनकी एबिलिटी में कोई शक नहीं, मे बी विद द बॉल इस्लामाबाद के लिए ऑलवेज फील कि ही फाइंड्स अ न्यू डायमेंशन जो कि शायद पाकिस्तान के लिए एट टाइम्स अवेलेबल नहीं होता. एंड मोहम्मद मूसा विल नीड टू टेक ऑन मोर रिस्पांसिबिलिटी, अब वो 2-3 साल वहां रह चुके हैं. पॉल स्टर्लिंग कॉलिन मनरो का गैप फिल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वही वाली बात है कि यू कुडंट थिंक ऑफ अनदर पर्सन. उन्होंने पिक जो किया है वो बहुत अप्रोप्रिएट पिक किया है. इट्स एन एक्साइटिंग टाइम. मुझे उस तरह से इस्लामाबाद की वो नहीं लगता कि वो उस तरह से नेल्ड ऑन है जिस तरह पहले 2-3 साल थे, बट इस्लामाबाद का ये है कि वो दे आर ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर्स. तो यू कैन सी देम ट्राइंग न्यू थिंग्स, और उनकी अगर बीच में कुछ सीनियर प्लेयर्स की फॉर्म कम है तो दे आर वन ऑफ दोस टीम्स दैट विल थ्रो इन यंग प्लेयर्स जिनमें उन्हें कॉन्फिडेंस है एंड मे बी जिस तरह पहले उनके यंग प्लेयर्स ने डिलीवर किया है वो डिलीवर करें. Young players की बात करें तो रोहिल नजीर has been touted for the top for some time now, and of course इस दफा वो पाक शाहीन्स का भी हिस्सा थे. मुल्तान सुल्तान्स में we really didn't get to see a lot of him, बल्कि उस टाइम पे मुल्तान में हमें लग रहा था लेग स्पिनर्स के साथ साथ विकेट कीपर्स भी शायद बहुत ज्यादा थे, बट यहाँ पे मे बी रोहिल के पास एक अपॉर्चुनिटी है. आई नो फिल सॉल्ट इज मे बी प्रॉब्ली गोइंग टू बी जो फर्स्ट चॉइस है, बट एक अपॉर्चुनिटी है रोहिल के पास भी कि वो परफॉर्म करके put his name forward not for national selection, but also be a very important young player for Islamabad. मैंने ये आपसे पूछना था एक्चुअली बिकॉज मैं पिछले साल भी कह रहा था कि मैंने मुल्तान के जब मैं प्लेयर टू वॉच कर रहा था तो रोहिल नजीर को मैं पिक कर रहा था, एंड पाकिस्तान के लिए भी मैं इंतजार कर रहा था कि मे बी he'll get a chance. तो अभी तक उनके लिए that's not happening. I'm a massive fan. मुझे रोहिल नजीर जब भी मैं उन्हें देखूं तो मुझे लगता है कि दिस इज समवन जो कि अगर सही तरह मैनेज हो तो पाकिस्तान के लिए ही कैन, मुझे एट टाइम्स इवन हैदर अली से वो ज्यादा एक्साइटिंग लगते हैं. लेकिन आई होप कि he gets a chance. यहाँ पे फिल सॉल्ट एज यू से नंबर 1 है, बट रोहिल आई वुड बी डिसअपॉइंटेड अगर उन्हें बिल्कुल कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, इवन इफ इट इज जस्ट एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन. तो रोहिल इज वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि पिछले साल इनकी काफी थी कि अहमद सफी अब्दुल्ला भी विल कम टू द पार्टी, वो उनको उतना चांस नहीं मिला. अब तो खैर उनके पास स्पिन डिपार्टमेंट आई थिंक दे लुक वेरी स्ट्रांग इन दैट कि उनके पास फवाद अहमद भी आ गए हैं एंड दे हैव जफर गौहर. तो इनकी इंटरेस्टिंग साइड है. आई विल एक्सपेक्ट टू सी कि उनके यंग प्लेयर्स को चांस मिले, लेकिन उनका बैलेंस मुझे लगता है कि मे बी अ लॉट ऑफ अदर साइड से ज्यादा है. उनकी दी ओनली कंसर्न इज कि शादाब की फिटनेस किस लेवल की है, बिकॉज सडनली पिछले साल जब वो स्ट्रगल भी कर रहे थे तो शादाब सडनली एक बैटिंग ऑप्शन उनके लिए टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छे बन गए. दैट्स जस्ट द सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि आप इस्लामाबाद जैसी फ्रेंचाइज से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक प्लेयर पे चांस ले ऑन देयर ओन डेटा एंड डिस्कवर समथिंग न्यू एंड ऐड अ न्यू डायमेंशन अपनी साइड के लिए. Daniel, obviously मेरा बायस मुल्तान की तरफ बहुत ज्यादा है. I'm looking at a couple of decisions मुल्तान की. एक obviously इलियास, इलियास बहुत अच्छा खेल रहे थे PSL में. आपने कहा वो गन बॉलर थे और अब he's got that chance कि कराची में अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, चैंपियंस में परफॉर्म करते हैं, तो मे बी वो अपना नाम नेशनल सिलेक्शन के लिए और ज्यादा डाल देते हैं. And secondly, Multan have taken a big decision to make Rizwan the captain, replacing Shan Masood. शान के हमेशा काफी लोगों को लगता है कि उनकी व्हाइट बॉल क्रिकेट में जगह भी नहीं बनती, बट उनका लास्ट PSL काफी अच्छा जा रहा था जब लॉकडाउन हुआ था. बोथ एज अ कैप्टन एंड अ प्लेयर ही वाज डूइंग वेल. तो क्या आपको लगता है इससे रिजवान पे ज्यादा प्रेशर होगा? बिकॉज ऑब्वियसली रिजवान लाइक यू सेड इस वक्त दुनिया के सबसे इनफॉर्म टॉप रेटेड विकेट कीपर बैट्समैन है अक्रॉस फॉर्मेट्स. क्या आपको लगता है कैप्टनसी उन पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगी, या आपको लगता है कि द वे ही हैज बीन कि वो हर चीज जो उनकी तरफ डाली जा रही है, कोई भी I wouldn't say necessarily कि he's being put under those pressures,
but he's taking on challenges. तो कैप्टनसी का चैलेंज भी आपको लगता है रिजवान, बिकॉज कराची ने तो उनको बिल्कुल ही नहीं खिलाया. कराची ने तो रिजवान को कभी लगता ही नहीं था कि उनके स्क्वाड में है, बट उनकी जो करंट फॉर्म है, ही मेक्स अ स्टार्ट, एंड एज कैप्टन डू यू थिंक इट विल बी टफ फॉर हिम, या आपको लगता है जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो मुल्तान सुल्तान के लिए भी बेनिफिशियल होगा? इस वक्त जो रिजवान कर रहे हैं, आपको एट टाइम्स लगता है कि कुछ भी उन पे के उनको रिस्पांसिबिलिटी दे दी जाए तो वो उससे इंटिमिडेट नहीं होंगे. दिस इज समवन जो कि आप याद रखें कि इनको न्यूजीलैंड में जब बाबर आजम इंजर्ड हुए तो इनको कैप्टनसी दे दी गई और इन्होंने फिर भी वहां पे ही वाज पाकिस्तान हाईएस्ट रन स्कोरर, इन्होंने 350s वहां पे की एंड सिर्फ 9 टेस्ट इन्होंने खेले थे एंड ही वाज गिवन द कैप्टनसी. ये पाकिस्तान के आई थिंक सेकंड मोस्ट इनएक्सपीरियंस्ड इन देयर हिस्ट्री थे टेस्ट के लिए, जावेद बर्की के बाद जिनको कैप्टनसी दी. तो इस वक्त उनकी ऐसी फॉर्म है कि आई थिंक कि वो किसी चीज को भी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे. ये एक अनसस्टेनेबल लेवल्स ऑफ फॉर्म है, लेकिन फॉर नाउ इट सीम्स लाइक कि कोई रीजन नहीं है कि ये कंटिन्यू ना हो. For Shan Masood, I'm interested to see अब Multan, I don't know, you'll have more insider knowledge and me कि वो किस तरह यूज करते हैं शान मसूद को, because हालांकि वो किसी के भी फर्स्ट चॉइस वाइट बॉल प्लेयर नहीं है, he always finds a way जब भी वो साइड में होते हैं to contribute. उन्होंने PSL में पिछले साल contribute किया, नेशनल T20 कप में for Southern Punjab once again उन्होंने ओपन किया, I think he scored 4 or 5 half centuries. तो उस लिहाज से आई थिंक कि वो ऐसे प्लेयर नहीं है जो कि उनसे कैप्टनसी ले गई है तो देन he's not a factor in the side. It's just कि उनके पास इतने पावर हिटर्स अब मुल्तान के पास टॉप पे हैं, people like Chris Lynn है, James Winston, कि he might find it hard कि वो साइड में आए, लेकिन ऑप्शन ज्यादा होना at the top of the order especially और एक लोकल ऑप्शन होना is not a problem. तो उस तरीके से I don't think कि कोई इतनी परेशानी की बात है. रिजवान is the big asset और वो मेरे ख्याल में कराची की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, because the way उन्होंने उसको मैनेज किया और the fact कि उसको चांस नहीं मिला वो उनको कॉस्ट कर सकता है. नाउ दैट दे विल बी अगेंस्ट हिम इन अ कपल ऑफ गेम्स. दानिया जी, इमर्जिंग प्लेयर्स की बात करें तो आपके माइंड में कौन स्टैंड आउट करता है? क्या आपको लगता है? रोहेल की हमने बात की कि अगर उनको चांस मिले वो बहुत परफॉर्म कर सकते हैं. लास्ट पीएसएल में हमने देखा कि हैदर अली की परफॉर्मेंसेस थी. आजम खान की काफी बात होती है क्योंकि वो भी पाकिस्तान में फीलिंग है कि हमारे पास वो पावर हिटर मिसिंग है. आई नो हमने इस दफा आसिफ को भी ट्राई किया, आपने सही कहा, वो थोड़े से वन डायमेंशनल हो गए हैं. हमने इफ्तिखार को ट्राई किया जिनकी टू बी फेयर डोमेस्टिक फॉर्म बहुत अच्छी होती है, बट इंटरनेशनल लेवल पे उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल है. तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे टीम में? आप कह सकते हैं पाकिस्तान नेशनल टीम में एक गैप है जिसको एक अच्छे टूर्नामेंट से आजम जो है अच्छे परफॉर्मेंसेस से फॉर क्वेटा अपना नाम रिंग में डाल सकते हैं एज बीइंग द फिनिशर और द पावर हिटर दैट टीम पाकिस्तान लैक्स. वंस अगेन उनकी अपॉर्चुनिटी ये है, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी उनकी क्लोज हो गई है पार्शली, क्योंकि शुरू में लगता था कि पाकिस्तान को एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए जो जिसके लिए आजम खान फ्रंट ऑफ द क्यू थे बिफोर मोहम्मद रिजवान की ये रिच वेन ऑफ फॉर्म आ गई. बट एज अ पावर हिटर, नॉट जस्ट एज अ कीपर, क्योंकि वो क्वेटा के लिए भी मोस्ट लाइकली कीपर तो नहीं खेल रहे होंगे, वो सरफराज अहमद कीपिंग कर रहे होंगे. तो उन्होंने नेशनल T20 कप के अंदर भी उन्होंने अपनी पावर हिटिंग, उन्होंने अपनी एबिलिटी दिखाई, उन्होंने अपनी फिटनेस पे भी बाय ऑल अकाउंट्स वो काम कर रहे हैं. एंड ही एट टाइम शुरू में था कि मे बी ही इज नॉट फिट इनफ कि वो हाईएस्ट लेवल पे खेलें, लेकिन ही इज वर्किंग ऑन दैट एज वेल. तो आजम खान इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कि कर सकते हैं एक अपनी रेपुटेशन को एनहांस इस एडिशन में पीएसएल की. और मैंने आपको जो पहले कहा था, मैं दानिश अजीज और रोहेल नजीर, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं दैट आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी. और लाहौर के लिए इवन आगा सलमान, बिकॉज इनको चांस नहीं मिला इवन दो ही वाज कॉल्ड अप. तो ये दो 3-4 प्लेयर्स हैं जिनके बारे में I've heard more about them than I've seen, लेकिन उनके numbers at times promising लगते हैं. People like रोहेल नजीर और दानिश अजीज, उनकी तो मुझे लगता है कि एबिलिटी थोड़ी अंडररेटेड है, सो कहते हैं वो उनको चांस होपफुली मिलेगा वो शोकेस करने के लिए. A couple of players I don't know about as much, लेकिन I'd like to see, आपने जिस तरह कहा मैंने भी मोहम्मद उमर का सुना हुआ है, तो I'd like to see कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं. और माज खान is another one जो कि 1-2 साल पहले आ रहे थे और हमने सुना था उनकी बड़ी वेरिएशंस हैं, बट व्हेन ही गॉट द चांस तो मे बी ही वाजंट क्वाइट रेडी. होपफुली एक साल में ये चीज चेंज हो गई है. तो लेट्स सी, लेकिन उस तरह से देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इफ यू वांट टू कीप एन आई आउट फॉर के इमर्जिंग प्लेयर्स. एक अच्छी बात है पीएसएल की, एवरी साइड हैज टू प्ले वन, तो वी विल गेट अ चांस कि हम बहुत सारे इस तरह के प्लेयर्स को देखने को मिलेंगे हमें. और दानियल, एनी सरप्राइजेस के जो प्लेयर नहीं सिलेक्ट हुए? यू नो कुछ अर्सा पहले जब यूएई में लास्ट हुआ था पीएसएल 4 तो उमर खान के चर्चे बहुत चल रहे थे, उन्होंने जेडी डिविलियर्स को आउट किया, बट नाउ ही इज नोवेयर टू बी सीन. तो क्या आपको लग रहा है कि कोई ऐसे सरप्राइजेस थे जो आपको लगा कुछ प्लेयर्स पिक हो सकते थे, नहीं हुए? एनीवन यू फील इज मिसिंग आउट? मुझे उमर खान इसलिए भी सरप्राइज करते हैं रिजवान की तरह. यू नेवर नो कि मे बी स्क्वाड में क्या हो रहा था. एक दफा उन्होंने एक मैच खेला था पिछले साल और ही डिडंट बॉल, और इमाद वसीम ने बॉलिंग की और उन्होंने नहीं की. तो
आपको अजीब लगा कि 2 साल पहले वो उनके स्टार इमर्जिंग प्लेयर थे और पिछले साल वो उनको काफी अंडर यूटिलाइज किया रिजवान की तरह। दूसरा इनका पार्शली थोड़ा सा ये है, मुझे कराची की एक और बात जो सरप्राइज करती है, आई फील लाइक आई एम पिकिंग ऑन देम, लेकिन मुझे समझ नहीं आती जो जेम्स विंस को द फैक्ट दैट दे लेट हिम गो, वो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा। एंड यू नो वो एक बहुत जेम्स विंस सॉरी एलेक्स हेल्स, वो मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा बिकॉज आई थिंक ही समवन जो कि इस वक्त शायद प्राइम T20 फॉर्म में है ऑफ हिज करियर ऑफ हिज लाइफ, तो वो that's something जो कि हमें जरा सामने देखने को मिल सकती है। मोहम्मद इलियास is another one जो कि मुझे मोहम्मद वो मुल्तान के लिए I think he could hurt them the fact कि वो चले गए, और क्वेटा की एक एब्सेंस है इन, हालांकि वो उनका कसूर नहीं है, लेकिन शेन वॉटसन और जेसन रॉय जो एब्सेंसेस हैं वो उनके स्क्वाड के अंदर अगर एक क्रिटिसिज्म है कि मे बी टू यंग है, तो वो एक्सपीरियंस और एक पेडिग्री ऐड कर सकते थे। सो दीज आर 3 or 4 थिंग्स जो आई थिंक मे बी ड्राफ्ट के अंदर हमें नजर आई हैं जो कि हर साइड के लिए थोड़ी सी समथिंग टू थिंक अबाउट। और थोड़े से अब हमने देखा पिछले दिनों में दानियल जी ट्विटर पे थोड़ी सी बैटल्स हुई, कुछ एक्स कैप्टन्स ने कुछ और एक्स कैप्टन्स के बारे में बात की, फिर कोई एक्स फास्ट बॉलर्स भी आ गए, तो क्या आपको लगता है इससे मैचेस में थोड़ी सी स्पाइस आ जाएगी, थोड़े से लोग अपना पॉइंट प्रूव करना चाहेंगे, सरफराज पे प्रेशर होगा प्रूव करना, क्योंकि लोग अब कहेंगे नहीं जी उनको तो रिजवान को पहले खिलाना चाहिए था। हफीज ने सरफराज की बात की, तो शायद क्वेटा और लाहौर के मैच में जिसमें जनरली इतने फायरवर्क्स नहीं होते, अब थोड़ी सी वो चीज आ जाएगी। आमिर के ऊपर काफी ज्यादा आई थिंक अटेंशन होगी, बिकॉज उन्होंने कहा कि जी मैं इस मैनेजमेंट के लिए नहीं खेलना चाहता, बट अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड इफ ही डज वेरी वेल, व्हिच वी नो कि जब फॉर्म में आमिर होते हैं ही कैन डू, टू बी फेयर ही इज नॉट बीन इन हिज बेस्ट फॉर्म इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स आल्सो। तो क्या ये जो हम कहते हैं जी साइड पे जो स्टोरीज चल रही होती हैं, डू यू थिंक दीज स्टोरीज कैन आल्सो जो रिसेंट पास में हुई हैं कैन हैपन एंड हैव सम इफेक्ट ऑन पीएसएल? आई थिंक क्रिकेट इस दफा ऐसी है कि यू डोंट नेसेसरली नीड दो स्टोरीज कि आपको क्रिकेट की को रिप्लेस करना हो क्रिकेट ड्रामा को, लेकिन द फैक्ट कि ये है वो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि कैजुअल सिर्फ कैजुअल इंटरेस्ट लेते हैं उनको ज्यादा रोप इन करती है। सो लाहौर क्वेटा एज यू से इज अ मैच जिसको सेल करना मे बी उतना आसान नहीं है, लेकिन जहां पे यू सेल इट एज अ बैटल बिटवीन हफीज ट्विटर एंड सरफराज अहमद, तो वो फिर सडनली उसके अंदर एक एडेड स्पाइस आ जाती है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे इस्लामाबाद लाहौर का भी एट टाइम्स मैच थोड़ा इसलिए इंट्रीगिंग लगता है क्योंकि वो कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोचेस हैं। इस्लामाबाद अपने बिल्कुल डेटा और अपने सर से डिसीजंस लेते हैं, अपने दिमाग से डिसीजंस लेते हैं, एंड लाहौर कंप्लीटली मे बी आर्ग्यूबली शायद ऑपोजिट हैं। तो वो इन अ वे शो करना चाहते हैं आप जितना भी इसके बारे में सोच लो, जब हम जज्बे और दिल से खेलेंगे तो दैट शुड बी इनफ फॉर अस। तो इस तरह 2-3 साइड प्लॉट्स हैं जो कि पीएसएल को 4-5 साल मिले ग्रो करने के, तो वी आर बिगिनिंग टू सी दोस इमर्ज। तो वो ठीक है। आई थिंक उस लिहाज से जब ये ईयर ऑन ईयर पीएसएल होने का ये फायदा है कि हर टीम की एक आइडेंटिटी बनना शुरू हो गई है, एंड उनके जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं उनके आपस में, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो चाहे वो जितने भी दोस्त हो द नेशनल साइड, वो उसके अंदर थोड़ी सी एक नीडल आ जाती है, जिससे सरफराज और हफीज की हमने देखा आ गई है, या मे बी इवन मोहम्मद आमिर एंड हफीज की, जो लाहौर कराची के मैच को अगर आइडेंट स्पाइस नहीं चाहिए थी तो अब वो है। तो वो इन दैट रिस्पेक्ट आई थिंक अगर आप उस तरह से हार्डकोर क्रिकेट में नहीं भी इंटरेस्टेड तो आप इस तरह की चीजों से अट्रैक्ट हो सकते हैं। एंड फाइनली जाने से पहले दानियल जी आपको क्या लगता है, इफ यू हैव टू पिक अ विनर, ऑब्वियसली ये अभी की बात है, आगे जाके इट कैन बी डिफरेंट, बट गोइंग इनटू द टूर्नामेंट जो अगर आप सब कुछ देखते हैं, आप ड्राफ्ट देखते हैं, आप हिस्ट्री देखते हैं, आप प्लेयर्स की फॉर्म लगते हैं, हु आर द फेवरेट्स इन योर आईज? आई थिंक जस्ट गोइंग बाय द स्क्वाड्स और जिस किस्म की पिक्स की गई हैं, मुझे इस वक्त लगता है कि क्योंकि सबसे कम क्रिटिसिज्म मैं कर सकता हूं of Quetta Gladiators team, so I'm going to tentatively go for them right now, Quetta. But having said that, at the same time, मुझे ये भी लगता है कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड will look to make a comeback. उन्होंने पिछले साल उनका थोड़ा सा बुरा गया था, and I'm waiting to see कि किस तरह वो उसको they pull out of that. So Quetta and Islamabad, but I'd give the edge to Quetta. ठीक है दानियल जी, thank you so much for taking the time out for us. It's always a pleasure to read your writing. All the very best to you. Stay safe. Thank you for taking the time out for us, and we hope we speak to you soon. Thank you very much. It's a pleasure. Thank you, sir. Thank you.